Turn to somebody Carol and sister. turn to somebody and say, I enjoyed God's presence this morning. Come on, be free in your spirit. Turn to somebody and say, I enjoyed. किसी से तो मुड़ के कहो कि मैंने आनंद उठाया, I enjoyed God's presence. मैंने प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाया। Amen. आमेन। I see a change in you और मैं तुम में एक बदलाव देख रहा हूँ, because it's new year. क्योंकि एक नया साल है, Because new blessings are coming. क्योंकि नई आशीषें आ रही है, New anointing is going to flow. नया अभिषेक बहने वाला है, The fresh move of God we are going to see. और प्रभु की नई चलन को हम देखेंगे। Amen. Amen. Before I get into the word of blessings to you, I want anyone specifically want to testify God, not yesterday who has testified. और आज जैसे मैं वचन में जाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि एकदम पूर्ण रीति से अगर आप आज एक गवाही देना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। कल जिसने गवाही दी वो नहीं, लेकिन आज किसी की गवाही हो तो प्लीज आगे Very आइए। short and sweet. God knows your testimony. और प्रभु आपकी गवाही जानता है, और एक बहुत ही छोटे में आप बताइए। I was आकर। waiting for 9:30 bus and 10:30 it came, and 10:30 I stepped first step, second step, third step, and I was standing. I got the seat in the so and so place. I don't want that thing. To the point. और मुझे ऐसी गवाही नहीं चाहिए कि 9:30 को बस आने वाली थी, बस आई, मैंने पैर रखा, खड़ा रहा, ऐसे हाथ पकड़ा, वैसी गवाही नहीं चाहिए। एकदम मुद्दे से बताओ, छोटे में। Sweet and short, God likes it. और छोटा और मीठा प्रभु को बहुत पसंद आता है। Amen. Hallelujah. Now it's time. If you want to give the testimony, don't sit there. You come out of the chair. That will be easy for us. अगर गवाही देना चाहते हैं तो आगे आ जाइए, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा कि कैसे हमें लेना है। कल की गवाहियाँ मुझे नहीं चाहिए, आज की फ्रेश गवाहियाँ चाहिए। Thank you, Jesus. I thank the Lord for the year 2015. With Jesus, each day is a testimony. I have written down the points and wrote so that I can finish fast. I thank the Lord for blessing us with a good house, which is close by to our church. I resigned my previous job, and Lord blessed me with a new job within 1 month. I thank Sister Basie for all her support. Next, I want to thank the Lord for clearing my face. If you all remember, I also thank Pastor Anthony for praying for this, and I thank Sister Stella for guiding me for a good doctor for the treatment. Another testimony is that my dad was blessed with a job after 4 years. Next is my PF was cleared, and the Lord did not keep us in debts. I thank the Lord for all the prayer intercessors, the women's group. Lord bless me, and I could take my mom to her native place after 40 years, and we could share the gospel with our relatives. Within 6 months, my salary was increased at my present job, and I got promoted. Thank you, Jesus. This was all material blessings, but spiritually the Lord also blessed me. I shared the word of God at my workplace, on the streets when I met people. Sometimes I cried in the presence of the Lord, but the Lord comforted me through His word. I thank Pastor for all his encouraging words and teachings. I thank the Lord that though me being a sinner, He loves me and shows mercies and His grace every day. I want to thank the Lord for everything in the year 2015, and I look forward with faith for 2016. Thank you, Jesus. Thank you, church. God bless you all. Wish you a very happy new year. Giving the claps, give a good claps. Don't give. हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में चलने में मुझे आज पूरा 1 साल हुआ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य, अच्छे कार्य किए। मेरे परिवार के जीवन सब इसमें बहुत सारी सहायता की है, और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमेशा मुझे आगे बढ़ाइए। हर साल में 31 में मैं कहाँ ना कहाँ घूमते रहता हूँ, यहाँ वहाँ जाते रहता था। आज परमेश्वर ने मुझे पहले दिन में परमेश्वर के भवन में लेके आया। हालेलुया, जीसस, धन्यवाद।
हालेलुया। मैं अपना गवाही बताना चाहूँगा। 2014 में 1 जनवरी को मेरी लड़की बीमार पड़ी थी, जिसे 3 दिन के अंदर मुझे 35,000 खर्चा लगा था। 3 दिन उसको लूज मोशन हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। चौथे दिन मैंने डॉक्टर को बोला कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, इतना पैसा लगे और ठीक नहीं हो रहा। बोला 4 दिन लगेगा क्लियर होने में, पर 4 दिन के बाद वो ठीक हो गई। पर मैं चर्च में जाता था और मूर्ति पूजा भी करता था। मैं 2015 लागू हुआ और मैंने सारी मूर्ति को निकाल दिया और सही से प्रार्थना करने लगा। 1 जनवरी को मैंने अपना रूम बुकिंग किया और मेरा घर हो गया। गए साल मैंने 80,000 रुपया रखा था घर बुकिंग करने के लिए। मैं सब बीमारी में चला गया और घर भी नहीं ले पाया और पैसा भी निकल गया सब। 2015 में मैंने घर भी लिया और मेरे एरिया में कम से कम 2000 घर टूट गए, पर मेरा घर प्रभु ने बचाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस चर्च में आके मुझे पूरा 1 साल हुआ और 2015 मुझे बहुत अलौकिक गया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और तीसरी बात है कि जैसा पास्टर वचन बताते थे, वो टीचिंग के द्वारा और वचन के द्वारा मुझे पूरा परमेश्वर ने अलौकिक तरह से भर दिया। और जब मैं ट्यूसडे के दिन, पास्टर ने संडे के दिन वचन बताया और वचन में मैं मनन कर रही थी जैसा योग के बारे में, तब मैंने ट्यूसडे के दिन परमेश्वर की बड़ी आंधी सुनी, जैसा परमेश्वर बात कर रहा था। और इतनी बड़ी आंधी सुन कि परमेश्वर ने कहा कि निर्मित से पहले अंतिम दिन तक ऐसी बात नहीं हुई, वो बात इस साल 2016 में हो जाएगी। और परमेश्वर बात कर रहा, बहुत बड़ी आंधी में बहुत खुश, मतलब परमेश्वर की पूरा उपस्थिति से भर गई थी। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि 2015 में परमेश्वर ने मेरा पूरा जो वरदान है वो वरदान में परमेश्वर काम कर रहा है। और इस चर्च में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, यहाँ लाया और परमेश्वर से प्यार से मुझे भर दिया। धन्यवाद। हालेलुया। मेरी एक गवाही है। 2015 को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस साल में परमेश्वर ने सारी स्वयं की बातें मेरे जीवन में से निकाल दी और अभी सिर्फ यीशु है। आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे आत्मिक तौर से और बाहरी तौर से बढ़ा रहा है। जैसे जैसे मैं इस चर्च में आई, मैं बहुत बढ़ते गई। वचन क्या है, वचनों में जीना क्या है, वो मैंने पास्टर से सीखा। थैंक यू पास्टर। और नई एक अच्छी बात ये है कि ये एक तरीके से मेरी सैलरी भी बढ़ रही है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मुझे एक आनंद जो होता है जो हृदय में, वो उसने मेरे हृदय में डाला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। बहुत सारे उसने मेरे जीवन में कार्य किया है, इसके लिए मैं उसी को महिमा देती हूँ। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. God is a wonderful God. Hallelujah. Last year was the year where God broke all my curses. I fasted and prayed. Pastor prayed over me, and since then I see a lot of changes. Spiritually, you grow. Financially, your bondage is broken. So I see some of my land issues are solved, and I'm getting back in the track. My debts will be finished. Hallelujah. So that is a great thing. Spiritually, the Lord has lifted us up. Especially Michaela, when she was writing her exams. We had bad crisis. I was bitten by the snake. You all know that. And everyone prayed, and God gave me a new life. I thank Jesus for that. Now I was saved from death. Amen. Because something has to be done. God is going to use me, I believe. Amen. So it was a wonderful thing that God has done in my life in 2015. And there is certain thing that God does to draw us closer. Hallelujah. Not losing faith. There was no change in my faith. There was no wavering. I went through much, but it is the Lord who carried me. Hallelujah. So it was a wonderful thing. Pastor knows everything. Hallelujah. I just praise God for everything that He has done in that.
प्रेज द लॉर्ड। एक एक सेंटेंस में एक गवाही कंप्लीट करती हूँ। ऑफिस में प्रे किया था कुछ लोगों के लिए, एक लड़के का परमानेंट जॉब के लिए, उसको वो जॉब मिल गया। मेरी एक कलीग है, काफ़ी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही थी, एंड वी वर प्रेइंग फॉर हर, उसका शादी तय हो गया है। प्रेज जीसस फॉर दिस। अभी रिसेंटली 28 दिसंबर को ही मम्मी को ठीक नहीं लग रहा था, इट्स नॉट वेरी वेल। बोल रही थी वो नमक वगैरह लेके नज़र उतार मेरी, शायद कुछ हो गया पता नहीं। आई सेड ये सब मुझसे नहीं होगा, डोंट डू दिस टू मी, आप यीशु का नाम लो, आई प्रे फॉर यू, आप ठीक हो जाओगे। तो देन शी इज़ लाइक नॉडिंग। ऐसे ठीक है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, मैं बोला ठीक रहोगे, एंड आई जस्ट प्रेड फॉर हर एंड मिराकुलसली एज यूजुअल लॉर्ड हील्ड हर, एज सिंपल। नेक्स्ट डे शी वाज लाइक, मैं बोला मम्मी ठीक लग रहा है, हाँ किसने किया? जीसस। यस, प्रेज गॉड फॉर दैट। शी स्टार्टेड बिलीविंग, प्रेज जीसस फॉर दिस, वंडरफुल। सिस्टर एस्टर राव की मीटिंग के लिए काफ़ी लोगों से बात किया, नेबर्स के साथ गॉस्पेल शेयर करने का मौका मिला, एंड दे मेनी ऑफ देम आई एम एक्सपेक्टिंग। सब प्रे कीजिए प्लीज़ कि वो आएँ। ऑफिस में भी काफ़ी लोगों से बात किया, एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग सैटरडे और संडे काफ़ी लोग आएंगे। लॉर्ड इज़ डूइंग वंडर्स, ही इज़ डूइंग मिरेकल्स। काफ़ी बार मेरे यहाँ मेड्स चेंज होती रहती है, मिलती है निकल जाती है, हमेशा प्रेयर रहता है मेड चाहिए, एंड आई नो वाई लॉर्ड इज़ डूइंग दैट। एक को लेके आता है, उसको गॉस्पेल दे दिया, अभी वो क्या करेगी, दूसरी आ जाती है। सो आई जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, लॉर्ड डज वंडर्स। अभी एक रिसेंटली आई थी, बहुत मुश्किलों में थी, पति ड्रंकर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, बट थैंक गॉड सब रिलीज़ हो गया। शी इज़ ग्रोइंग इन द लॉर्ड, बाइबल दे पाए, उससे गॉस्पेल बांटा। वंडरफुल, द बेस्ट एंड the most beautiful thing, my husband got water baptized. Praise Jesus for that. The whole of the family is growing in the Lord. Praise Jesus for that. The most awaited prayer, Lord answered. Thank you, Jesus. Praise the Lord. This last year was a wonderful year for me, because this was the year when I first put forward my steps to do the village ministry. We did 2 meetings in Dang's area, and God used me for preaching the gospel over there. So I thank Jesus for all the wonderful blessings that He has showered upon me. And last year I felt that God was with me in each and every step, in each and every decision that I made. According to Exodus 33:14, His presence always was with me this last year. I thank Him for all the protection He has granted to my family, and all the spiritual blessings to me and my wife and the children. I thank you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is so gracious. You want to share? Yeah. God is so gracious to me and my family. प्रभु मेरी तरफ बहुत ही दयावंत रहा और मेरे परिवार की He तरफ भी। joined my auntie and my mom to the service. मेरी माता को और मेरी मौसी को भी उसने सर्विस में यहाँ ज्वाइन किया, I never expected it. और मैंने ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की थी। I'm so glad that in these last days of the Lord's coming, they are with me to serve the Lord. और मैं इतना खुश हूँ कि ये अंत के समय में जैसे प्रभु का आगमन निकट है, वो दोनों मेरे साथ है। They can't do much because of the language, but they can pray for us. और वो अपनी भाषा के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए But प्रार्थना I'm करते हैं। glad in the last days He's joining His people for His divine encounter. और उसके दिव्य साक्षात्कार के लिए अंत के दिनों में प्रभु हम सबको एक साथ जोड़ रहा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। Oh, to brother. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ा बड़ा है, 5 मिनट लगेगा। एज यू नो आई हैव जॉइंड तंजानिया, वहाँ पे काम चल रहा है। मेरा ड्राइवर है, अभी वो बाइबल लेके घूम रहा है, या अभी मेरे को प्रीच करता है। एंड देन एंड ऑफिस में देर आर 4-5 पीपल, दे कम डेली, वी हैव स्मॉल चैट्स, प्रेयर्स, एंड दे कॉल मी व्हाट भाई फ्रॉम इंडिया, एंड हु इज़ ए प्रीचर. And they gave a shawl to my mother in Swahili. The language they speak is Swahili. तो उस पर लिखा हुआ है asante mama. Asante means thank you mother for bearing this child. And yesterday they told me. So, and one church where I am going, same like us, the pastors and all the members have sent their greetings to you all, and I have invited them, and they have invited pastor also. So. And the church is very beautiful.
just made out of like tabernacle they call. Tabernacle church. And before coming here, मेरा तीनों I went to one place. वहाँ से रात को फ्लाइट से आया, टैक्सी में से उतरा और एक कार आया साइड में. एंड देन एट 11:30 थोड़ा सा फाइट, फिर बाद में लैपटॉप, पासपोर्ट सब लेके गए, कार्ड्स एंड ऑल. सो नाइट आई कॉल्ड माई वाइफ, पास्टर एंड ऑल, वी प्रेड. नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फ़ोन किया, पासपोर्ट सब कुछ वापस दे दिया. सो एंड दैट्स व्हाई आई कुड कम हियर, अदरवाइज बिना पासपोर्ट के तो आ ही नहीं सकते. सो थैंक यू जीसस एंड थैंक यू फॉर द लिविंग लॉर्ड. एंड Tanzania is a place where our church, our preachings all are being spread. I was invited for one church to preach, but मैंने बोला I am not yet ready to preach actually. This time you are ready. This time, yeah. Next time we'll see. Thank you. Amen. Hallelujah. हालेलुया. God has been so gracious, right? और प्रभु बहुत ही दयावंत रहे, सही है ना? So wonderful, Jesus. कितने अद्भुत है यीशु. Jesus is so wonderful. यीशु बहुत अद्भुत है. Jesus is so beautiful. यीशु बहुत सुंदर है. He's the lily of the valley. वो सोसन का फूल है. He's a beautiful rose of Sharon. और शारोन का गुलाब है, वो सुंदर सा. There's a beautiful song says like this. और एक सुंदर गाना ऐसा कहता है, हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. Jesus is so beautiful. यीशु बहुत सुंदर है. You cannot describe his love. और आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते उसके प्रेम का. He is so beautiful beyond description. और कोई वर्ण अवर्णनीय है वो प्रभु. When Jesus was walking on the street of Jerusalem, और यरूशलेम की गलियों में जैसे यीशु चल रहे थे, everybody was falling on Jesus. और सब लोग यीशु के ऊपर गिर रहे थे. There were some 10 group of people. और 10 ऐसे लोग झुंड के थे. There were 10 group of people. और 10 झुंड के लोग थे. You know, they were so far away, standing and waiting for Jesus. और वो बहुत दूर खड़े रुके हुए थे प्रभु यीशु के लिए. Oh, when can we meet this Jesus? और कब हम जाकर इस यीशु को मिलेंगे? When can I go and talk to Jesus? और कब जाके मैं यीशु से बातें But करूंगा? because of the much crowd, they couldn't even talk to Jesus. और इतनी भीड़ के कारण वो यीशु से बात भी ना कर And the पाए. Bible says, और बाइबल बताती as है, Jesus moved out of the city, और जैसे यीशु वो शहर से बाहर निकल रहा था, and there he saw
10 lepers standing to meet Jesus Christ. और वहाँ वो देखता है कि 10 कोढ़ी रुके हुए हैं यीशु के इंतजार में। There were 10 lepers, they are waiting to meet Jesus Christ. और 10 कोढ़ी ऐसे थे जो रुके हुए थे यीशु के लिए। Put your voice. There are 10 lepers who are waiting to meet Jesus Christ. और 10 कोढ़ी ऐसे थे जो रुके हुए थे यीशु के लिए। Hallelujah, Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Have mercy upon us. हम पर दया कर, Have mercy upon us. हम पर दया कर। In 2015, 2015 में we were suffering from this kind of sickness. और मैं इस तरह की बीमारी से जा रहा था। From so many years, we have leprosy on our body. कितने साल से हमारे शरीर पर पूरा कोढ़ है And we are rejected from the family. और हम हमारे परिवार से एकदम त्यागे गए हैं। So many years over, but we have no meeting the families. और हमारे कितने साल बीत गए लेकिन हम हमारे परिवार से ना मिल पाए। We couldn't meet our relatives. हमारे संबंधियों से हम मिल नहीं पाए। Jesus, if you want to go to meet them, people are ready with the stone to throw and kill us. यीशु अगर हम उनको मिलने भी जाए तो वो पत्थर लेके तैयार है कि कब हम पर फेंके। Oh Jesus, ओ यीशु, help us, Jesus. हमें मदद कीजिए यीशु। Jesus, यीशु, we need your help. मुझे आपकी सहायता चाहिए। Jesus, यीशु, we need your mercy. और आपकी दया चाहिए। Oh Jesus, ओ यीशु, touch us, oh God. हमें छू ले प्रभु। We have heard that और हमने वो सुना you have healed the blind. कि तूने अंधों को चंगा You किया have healed the sick. और तूने बीमारों को You चंगा किया। have raised the Jairus' daughter who was dead. और जरियस की जो बेटी जो मरी हुई थी उसको तूने जिंदा किया। Jesus, we want you, Jesus. और यीशु हमें आप चाहिए यीशु। Jesus, we want you to heal us. और हम चाहते हैं कि आप आए और हमें चंगा करें यीशु। Jesus looked this 10 lepers. और यीशु ने इन 10 कोढ़ियों को देखा He moved with compassion. और वो पूरे तरस से He भर गए moved with love. और प्रेम से भर गए He was full of mercy. और वो पूरे दया से भर He was गए full of compassion. और वो पूरी तरस से भर गए He looked their life. और उनके जीवनों को उन्हें He देखा saw their tears. और उनके आंसुओं को He देखा saw their brokenness. और उनके टूटेपन को He देखा said to them, और उसने उन्हें कहा I am willing to heal you. और मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। Go. जाओ, Show to the doctor. अपने आप को वो डॉक्टर को बताओ You are healed. तुम चंगे हो गए हो। You are तुम healed. चंगे हो गए हो। What happened in 2015 2015 में जो हुआ shall not repeat in your life. वो आपके जीवन में पुनरावर्तित नहीं What होगा। happened in 2015? जो भी 2015 The में हुआ failure, the sickness, the weakness, the disease, the poverty will not carry forward in 2016. और वो बीमारियां वो नंगापन वो जो तुम्हारी सब स्वयं की बातें वो कुछ भी सॉरी वो तुम्हारी सारी हार टूटापन वो कुछ भी 2016 में रिपीट नहीं होगा। I don't know about you, but I'm in the spirit. Hallelujah. हालेलुया Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। I don't know about your weakness. और मैं आपकी कमजोरी के बारे में नहीं I don't जानता know about your poverty. और आपकी गरीबी के बारे में नहीं I don't जानता know about your sickness. और आपकी बीमारी के बारे में नहीं I जानता don't know about your failures. और आपकी हार के बारे में मैं I नहीं don't जानता know about what you're going through in 2015. और 2015 में आप कहाँ से निकले कहाँ से Or गुजरे I मैं don't नहीं know जानता what disappointment that happened to you. और क्या क्या आपको नाराजगी हुई उसके बारे में मैं नहीं But जानता 2015, 16, पर 2016 में you are going to walk out from all those things. और 2016 में उन सारी चीजों से आप ऐसे चल के निकलोगे। This morning Jesus says, और इस सुबह से यीशु कहते हैं go, जाओ you are healed. तुम चंगे हो गए हो You have no turning backs. और आपको पीछे मुड़ना नहीं है Go and show to the high priest. और जाओ और अब मुख्य याजक को स्वयं को And दिखाओ what happened to your body? और आपके शरीरों को क्या हुआ उसको Listen to the दिखाओ prophetical message from the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी के शब्दों को सुनो। As they were going out of 2015 और जैसे वो 2015 से चल के जा रहे थे and they were walking, और जैसे वो चल रहे थे where they were walking, और जहाँ वो चल रहे थे they were walking towards the house of God. और वो प्रभु के भवन की तरफ चल रहे And थे my Bible says
says, और मेरा बाइबल कहता है on the way, वो रास्ते पर ही, on the way, वो रास्ते पर ही suddenly, अचानक all the leprosy disappeared. सारा कोढ़ गायब हो गया They started to see, hey, और वो देखने लगे there हे is no 2015 in my life. और मेरे जीवन में वो 2015 है ही नहीं। Hey, I have 2016 in my hands. हेलो, मेरे जीवन में 2016 है। Hallelujah. हालेलुया। I don't have 2015. और मेरे पास 2015 नहीं है। No trace of leprosy. कोई भी एक अंश मात्र भी नहीं कोढ़ का। Leprosy, no trace on the body. और पूरे शरीर पर कोढ़ का एक स्तर भी नहीं, एक Hallelujah. कण भी नहीं। My past is forgiven. और मेरा भूतकाल क्षमा हो चुका My है। past is disappeared. और मेरा भूतकाल गायब हो चुका My है। past weakness is disappeared. और मेरी सारी कमजोरियां भूतकाल की जा My चुकी है। past death is disappeared. और मेरे सारे पुराने उधार जा चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। But now पर अभी something happened कुछ तो हुआ all over my body. मेरे पूरे शरीर पे। I got a new skin. और मेरी एक नई चमड़ी Yeah, है। I got a new flesh. और मुझे एक नया मांस मिला है। The blood was oozing from my finger. और मेरे उंगलियों से खून आता था। Oh, हो my flesh was rotten. और मेरा मांस सड़ गया था। But something happened. अरे कुछ तो हुआ था। These 10 lepers, और ये 10 कोढ़ी they met Jesus और उन्होंने यीशु के मिले in the old year. और 2000 पिछले And साल में। Jesus said, और यीशु ने कहा move forward. आगे जाओ, Move forward. आगे जाओ। When you take the word of Jesus और जब आप यीशु का वचन लेते and हो you move forward, और आप आगे जाते हो you are delivered. और आप छुटकारा पाते हो। Woo! हालेलुया, Somebody shout hallelujah. हालेलुया। And they said, hey, और उसने कहा हे new beginning. मेरी नई शुरुआत, Oh, new flesh. नया मांस। Oh, ओ no more torn clothes on my body. और मेरे शरीर पर कोई भी फटे हुए कपड़े नहीं। I am going to wear a new clothes. और मैं एक नया कपड़ा पहनने वाला I हूँ। will be covered. और मैं पूरा ढका हुआ I am रहूंगा। restored. और मैं पूरा पुनरुत्थित I am होऊंगा। going to be prosperous. और मैं धनी होऊंगा। Nobody will able to throw the stone again on me. और कोई भी मुझ पर वापस वो पत्थर नहीं डाल सकता। Because क्योंकि there is no rotten flesh on my body. और मेरे शरीर पर कोई भी सड़ा हुआ मांस नहीं है। Now I am new creation. अभी मैं एक नई सृष्टि हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your 2016. आपका 2016 We will have victory. और तुमको विजय मिलेगी। हालेलुया। 2016. और 2016 में The lost inheritance will come back. और खोया हुआ तुम्हारी रियासत वापस मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। In 2016, 2016 में you will have abundance provision from the Almighty God. बहुतायत से आपके पास होगा प्रभु की तरफ से। Hallelujah. हालेलुया। You may be thinking little, और आप थोड़ा ही सोच रहे but होंगे think about big in the Lord. और आप प्रभु के बारे में सोचिए। If you are a businessman, अगर आप एक व्यापारी हैं you think about how to give God. God will bless your business. और आप सोचिए कि प्रभु को कैसे देना है और प्रभु आपके व्यवसाय को आशीष देंगे। If you are a disciple of Jesus अगर Christ, आप यीशु के एक चेले हो, think about how to serve the Lord. God will lift you up. सोचो कि आप प्रभु को कैसे आप सेवा करोगे और वो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are a worshipper, अगर आप एक आराधक हो think about how to worship the living और God. सोचो कैसे जीवंत परमेश्वर की आराधना God करनी will है lift you up. और प्रभु स्वयं आपको ऊंचा Each उठाएंगे। one has given each talent. अगर उसने हर एक को एक एक तोड़ दिया है, Hallelujah. Each talent he has given, gift he has given. हर एक गुण जो उसने दिया है, God will bless you in that gift in the coming this year. और आने वाले दिनों में उसी गुणों में प्रभु आपको आशीष देंगे। But only one condition. पर एक शर्त पे, Your blessings are based on how you think about the kingdom of God development. और आपकी आशीष उस पर आधारित है कि आपके प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। Your blessings are based on the development of the kingdom of God, how you decide. और प्रभु का राज्य में का जो विकास है वो आप कैसे सोच रहे हो, वो किस पर आधारित है। उसको बढ़ाने के लिए
Hallelujah. थैंक यू सिस्टर। ओके, तुम्हारा जो उन्नति है उस बात पर निर्भरित है कि तुम ये इस बात का सोच विचार करो कि प्रभु के राज्य के लिए मैं क्या करूंगा। If you are a businessman, क्योंकि यदि तुम व्यवसाय करते हो, I will become the provision for the kingdom of God. You see, God will shoot you up for the highest blessing. मैं प्रभु के राज्य के लिए सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो ऐसे अगर तुम निर्णय लेते हो तो देखो तुम तो ऐसे करोगे तो देखो तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ोगे। Hallelujah. हालेलुया। If you, what God has given the talent, if you give it to God's kingdom, God will lift you up in those अगर areas. जो प्रभु ने तुम्हें गुण दिया है वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे तो जरूर तुम्हारी उन्नति प्रभु करेगा। This year that is going to happen. ये आने वाले साल में, ये साल में ये जरूर ये Now होगा। these 10 lepers were healed. अभी देखो ये 10 कोड़े चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Out of 9 they are thinking self. ये बाकी के 9 जो है अपने स्वयं की विचार कर रहे हैं। When shall I go and do something to my family? कब मैं जाऊंगा और मेरे परिवार के लिए कुछ करूं। They are thinking about the world. वो दुनियादारी की सोच रहे They are हैं। thinking about their children. वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे They are हैं। thinking about all the stuff they can do. वो सब मैं क्या क्या कर सकता हूँ अभी उसके बारे में वो लोग सोच रहे Because हैं। God healed their lives. क्योंकि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। Only one person. केवल एक ही कोड़ा। Say with me, only one person. केवल एक व्यक्ति। Only one leper. केवल एक कोड़ा Who was healed. जिसको चंगाई मिली। He thought about Jesus. उसको केवल यीशु के बारे में सोचने लगा। हालेलुया। All the 9 never thought about Jesus. बाकी के 9 यीशु के बारे में भूल गए। Only one leper. केवल एक ही कोड़ा Who was healed. जिसे चंगाई मिली। He on the way. और अपने मार्ग में जैसे वो जा रहा He had था, north, south, east, west to go. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम था जाने के लिए, But he thought about Jesus. लेकिन उसने यीशु के बारे में सोचा। This year, ये साल whoever is going to think about Jesus, जो भी यीशु के बारे में सोचेगा they shall be lifted up. वो उठाया जाएगा। They shall ऊंचा, be lifted up. वो ऊंचे उठाए जाएंगे। Don't sit at home this year. ये साल में घरों में बैठे मत I रहो। want to tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों, I will tell you later. बाद में मैं बताऊंगा। This man came to Jesus अभी ये आदमी यीशु के पास आता है and said, Jesus, और कहता है यीशु, Jesus, यीशु, oh merciful God, हे दयालु प्रभु, oh compassionate Father, हे तरस खाने वाले you are परमेश्वर, the way, the truth and life. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य और I जीवन भी don't want है। to leave you and go anywhere. मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना See, चाहूंगा। my fingers have grown. देखो देखो मेरी उंगलियां बढ़ गई See, हैं। my fingers have grown in the leg. देखो मेरे पैरों की उंगलियां भी बढ़ गई See, हैं। my body is well. देखो मेरा शरीर चंगा हो गया Now I है। am perfect. अभी मैं पूरा सिद्ध हो गया हूँ। Jesus, यीशु, I want to thank you. मैं तुझे धन्यवाद देना I चाहता हूँ। worship you. मैं तेरी आराधना करता I हूँ। love you. मैं तुझसे प्रेम करता My हूँ। life is to you. ये मेरा जीवन तेरा है। Hallelujah. That was the heart of a leper. वो कोड़े का हृदय ऐसा था। Hello. Are you here? Are you here? We have come the first day of the year. ये साल का पहला दिन आप आए हो। Why we have come? क्यों हम यहाँ We इकट्ठे have हुए? come like that the one leper who turned to Jesus वो Christ. हम उस एक कोड़े के समान हैं जो वापस आए यीशु को धन्यवाद देने के Every लिए। Sunday हर इतवार you को should come like that leper to thank उस God. कोड़े के समान तुम्हें आना है प्रभु को धन्यवाद देने Monday के to लिए। Saturday He has protected you. सोमवार से लेकर शनिवार से तुम्हारी रक्षा की। If you make a commitment, अगर तुम प्रभु से वादा करते there is a हो provision of blessings like this. तो फिर वो प्रभु ने तुम्हारे लिए पहले से कुछ आशीषें रखी हुई Otherwise, हैं। what God has spoken, I will tell you today. नहीं तो जो प्रभु ने मुझसे आज कहा है वो मैं तुझे बताने वाला हूँ। Hallelujah. These are the days. Put 1 Timothy, brother. आइए पहला तिमोथी में चलेंगे। 2 Timothy 3:1, please. Two Timothy 3:1. 2 तिमोथी 3:1। I this know also that in the last days perilous times shall come. पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। Perilous times is going to come.
कठिन समय आने वाली है। There is going to be a deception, there is going to be a lie in the world that is going to enter this year. अभी ये साल में ये जो साल है इसमें बहुत सारा झूठ आने वाला है और भरमाने वाली चीजें भी आएंगी। We are living in the dark time. क्योंकि हम अंधकार के समय में I हैं। want to demonstrate something to you. अभी तुम्हें कुछ प्रदर्शन करके बताना चाहूंगा। One more person I want. एक और व्यक्ति आना मुझे मदद करने के लिए। So you hold that glass in another empty glass. और एक खाली गिलास ले पकड़ कर खड़ा रहना। Hallelujah. Put this. This water is pouring. देखो ये पानी ये डाल रहा है। This is the sin of iniquity. ये से कहते हैं अधर्म का पाप। This is the sin of iniquity. ये अधर्म का पाप है। Brother, this know also that in the last days perilous times shall come. ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे, आ गया है। Hallelujah. आ गया है। Now, अभी this is the cup of iniquity. देखो ये अधर्म का प्याला है। It was little. ये थोड़ा ही था। Put verse 2. अभी दूसरा For men shall be lovers their own selves. क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी बनेंगे, covetous, लोभी, boasters, डिंगमार, proud, अभिमानी, blasphemers, निंदक करने वाले, then disobedient to parents, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, unthankful, और कृतज्ञ, unholy, अपवित्र, next, without natural affection, मया रहित, truce breakers, क्षमा रहित, false accusers, दोष लगाने वाले, incontent, असंयमी, fearless, कठोर, despise of those that are good. भले के बैरी। The Bible says अभी पवित्र शास्त्र कहता है the cup is full of iniquity. ये प्याला पूरे अधर्म से भरा हुआ है। You know what does it mean? जानते हो उसका मतलब क्या है? This is in the world in 2016. 2016 में ये पूरे दुनिया में ये सब भरा हुआ है। The cup is full. Sin of iniquity is full. यानी ये पाप का जो प्याला भर चुका है इस संसार में। The sin, show that one, that's right. The sin of iniquity is full. ये पाप का जो अधर्म से ये पूरा संसार भर This is चुका the है। cup of iniquity. ये प्याला है अधर्म का। Cup of iniquity, come this ये way. प्याला है अधर्म का। Now it is full. अभी ये भरा हुआ है। Now it is full. अभी वो भरा हुआ What है। does it mean? उसका मतलब क्या It is है? God's judgment is coming on this earth. यानी ये पूरे संसार के ऊपर प्रभु का प्रकोप आने वाला, या दंड आने वाला है। God's judgment is going to come on the earth. पूरे संसार के ऊपर अभी प्रभु का दंड आने वाला है। Back to Haggai chapter 2. चले हगाई दूसरे Now, अध्याय में चलेंगे। There is another cup. और एक प्याला है, Another cup. दूसरा एक और प्याला है। This is a cup of blessings. ये है आशीष का प्याला। This is also getting full. ये भी अभी भरता जा रहा है। This is also full. ये भी भरता जा रहा है। Hallelujah. Now the cup of iniquity is full. अभी देखो ये अधर्म का जो प्याला है वो भी भरा हुआ The है। cup of blessing is full. आशीषों का प्याला भी भरा हुआ We है। learnt about the cup of iniquity. हमने अधर्म के प्याले के बारे में सीखा। 2:7, 2:6. Now the Bible says, what is the cup of blessings? अभी ये आशीष का प्याला क्या है बाइबल कहता है? Put 5. Okay. The cup of blessing is तो आशीष का प्याला क्या है? your fasting prayer, तुम्हारी उपवास प्रार्थना, your surrendering to God, तुम्हारा प्रभु की ओर कितने समर्पित होते हो, your worship, प्रभु तुम्हारी आराधना, your giving to God, प्रभु को देना, your sharing the word of to the people, लोगों के साथ वचन जो तुम बांटते हो, and your love towards God, अब तुम्हारा प्रभु के लिए प्रेम, and your thirst for the Almighty प्रभु God. के लिए भूख और प्यास, This is called cup of blessings. इसे कहते हैं आशीषों Now का the cup प्याला। of iniquity is full. अभी देखो ये अधर्म का प्याला भरा हुआ The है। cup
of iniquity is full. अभी जब ये अधर्म प्याला भरा हुआ है, And it is going to be judged. यानी उसका जो है न्याय होने वाला ही है। How many of you read in the book of Revelation? तुम में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ा है? The incense and the prayer of the saints went and touched the throne of God. वो सुगंध द्रव्य और संतों की प्रार्थना जाकर प्रभु के सिंहासन को स्पर्श करती है। Hallelujah. Hallelujah. Now, Jesus said यीशु ने कहा in the Bible, पवित्र in the शास्त्र book में, of Revelation, प्रकाशित वाक्य के is going पुस्तक to में, pour out this cup to the earth. ये प्याला वो इस पूरे संसार के ऊपर उंडेलने वाले And the हैं, judgment will come upon the sin of iniquity. और वो जो अधर्म के पाप के ऊपर उसका जो है न्याय वो करने वाला The है। people who fasted, who prayed, who surrendered their life to God, preached the God, word of God, martyred for Christ, their tears have touched the throne of God. वो लोग जो उपवास प्रार्थना में रहे, जिन्होंने प्रार्थना की, जिनकी आंसू प्रभु के सिंहासन को स्पर्श किए, वो प्रभु, और जिन लोगों की हत्या की गई थी, उनके सारे आंसुएं प्रभु के सिंहासन को जाकर स्पर्श हुई। Hallelujah. Now what God is going to do in this year? अभी ये आने वाले साल में प्रभु क्या करने वाले हैं? The sin of iniquity will be judged. ये जो अधर्म का जो पाप है, उसके ऊपर प्रभु अपना दंड दिखाएंगे। You miss the church, you will be judged. अगर तुम कलीसिया को चुकोगे, नहीं आओगे, तो You तुम्हारे पर didn't दंड pray, आएगा। you will be judged. तुम अगर प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्हारा दंड You didn't होगा। fast, you will be अगर judged. तुमने उपवास नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर दंड You आएगा। didn't keep up the word of the Lord, you will be judged. अगर तुमने प्रभु का वचन के अनुसार नहीं If चले you're हो, not तो तुम्हारे walking- पर दंड होगा। If you're not walking according to the promises of God, you will be judged. अगर प्रभु के वादे के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर If दंड you are आएगा। not following the word of God, you shall be judged. अगर तुम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो तुम्हारे ऊपर वो न्याय But करेंगे। if you fast, लेकिन अगर तुम उपवास if you करोगे, keep up prayer, अगर तुम प्रार्थना में समय if you बिताओगे, attend the service of God, अगर प्रभु की सभाओं में तुम आओगे, you shall be blessed. तुम आशीषित और धन्य Because we रहोगे। are living in the perilous time, the Bible says. क्योंकि बाइबल कहता है कि हम ऐसे बुरे दिनों में अभी रह रहे हैं। Hallelujah. Dangerous time we are living in. ये ऐसे बहुत ही खतरनाक समय है जिसमें हम जी रहे The हैं। cup of iniquity वो है प्याला अधर्म का, and the cup of blessings are there. और यहाँ पर देखते हैं कि आशीषों का प्याला Now है। if we read Haggai 2:6, अगर तुम हगाय के दूसरा अध्याय छठा वचन पढ़ोगे, thus say the Lord of hosts, सेना का यहोवा ये कहता है, yet once it is a little, अब थोड़ी ही देर बाकी है while I will shake the heavens, कि मैं आकाश को कंपित करूंगा, and the earth, heavens and earth will be shaken, और पृथ्वी को भी कंपित करूंगा, and the sea and the dry land. और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको। This year is a year of fullness of God's judgment. यानी ये जो साल होगा, वो प्रभु के दंड का पूरा परिपूर्ण साल होगा, Because the sin of iniquity is full. क्योंकि ये जो पाप का जो अधर्म जो अभी पूरा हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। That's what we see. People are growing cold in the Lord. इसलिए हम देखते हैं कि लोग प्रभु में ठंडे हो गए हैं। People are not ready to receive the Lord. प्रभु को पाने के लिए, ग्रहण करने के लोग तैयार भी नहीं People have हैं। their own agenda. लोग अपना खुद का ही एजेंडा, यानी अपने खुद की कल्पना में रहते हैं। God is going to judge the iniquity this year. ये साल में प्रभु उन सारे अधर्मों का दंड देंगे या उनका न्याय करेंगे। This year you should not listen to any deceptions or lie of the devil. ये साल में तुम्हें किसी का झूठ की सुनना नहीं है, या कोई भरमाने वाली आवाज को सुननी नहीं Now है। verse 7. And I will shake all nations, अभी 7वां वचन, और मैं सारे जातियों को कपाऊंगा, and the desires of all nations, और सारी जातियों की मन भावनी and I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। What is the cup of blessings? तो ये आशीषों का प्याला क्या है? God is going to fill with His glory. अभी प्रभु अपनी महिमा के तेज से भर देंगे। You know, read next verse. Silver is mine, चांदी तो मेरा है, gold is mine, सोना भी मेरा ही है, says the Lord of hosts. सेनाओं का यहोवा की ये वाणी Verse है। 9.
9वां वचन, And the glory of this later house shall be greater than the former. और इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। Said the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। In this place will I give peace, says the Lord of hosts. इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। Hallelujah. Now, the cup of iniquity is full on the earth. देखो इस धरती पर ये अधर्म का जो प्याला है वो पूरा हो चुका है, It's भर going चुका to है। shake the nation's desires. और ये राष्ट्रों की जो खुद की इच्छाएं हैं प्रभु उसको हिलाने He वाले is हैं। going to judge the nation desires. वो पूरे राष्ट्रों की इच्छाओं के ऊपर वो न्याय करने वाले But हैं। if you put fasting, लेकिन अगर तुम उपवास में समय बिताओगे, if you put prayer life, अगर प्रार्थना का जीवन रखोगे, if you're seeking His presence, अगर उसकी उपस्थिति को if you खोजते हो, love God, यदि तुम प्रभु से प्रेम you करते हो, serve Him, उसकी सेवा कर रहे हो, God is going to increase His glory upon your lives. तो प्रभु अपनी महिमा तुम्हारे जीवन के ऊपर बढ़ाएंगे। That's what the Spirit of the Lord told me. पवित्र आत्मा ने यही बात मुझसे कही। You know, from 17th to 23rd of January, the whole week the church is going to fast. 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक पूरी कलीसिया उपवास प्रार्थना में For 7 लगेगी। days this month, the beginning of the year of this month, we are going to seek the presence of God. 7 दिनों के लिए इस साल की शुरुआत में हम पूरी कलीसिया एक साथ में मिलकर उपवास करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। No food, कोई खाना नहीं but we are going to खाएगा, seek the presence of God. लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में I said to बैठेंगे। the Lord, Lord, I don't want to come under the iniquity of judgment. मैंने कहा कि प्रभु मैं इस अधर्म के प्याले में नहीं आना चाहता I want हूँ, to come under the cup of blessings. मैं आशीषों के प्याला में चलना चाहता हूँ। Hallelujah. Are you here? क्या आप लोग हैं? Are you here? Lord of lies are happening on this earth. इस धरती पर बहुत सारा झूठ घूम रहा है। Church, we need to get ready for the new move of God. तो कलीसिया हमें तैयार होना है, प्रभु क्या नए चलन चल रहे हैं उसमें तैयार होना है। The cup is full. ये प्याला भर चुका है। Coming year, आने वाले साल के God लिए is going to answer our prayers. प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे Cup of blessing is my portion. और आशीषों का प्याला ही मेरा भाग होगा। Don't waste time anymore on this earth. अभी इस धरती पर और कोई समय मत गवाओ। Now I want to ask you a question. अभी एक सवाल तुमसे पूछूंगा, How is your cup? तो तुम्हारा प्याला कैसा है? How is your cup? तुम्हारा प्याला कैसा है? You belong to this cup or you belong to this cup? क्या तुम इस प्याला के भागी हो या वो प्याला तुम्हारा है? You murmur, क्या तुम कुड़कुड़ा रहे हो? you will be in the sin of तो iniquity. तुम इस अधर्म के प्याले में रहोगे। I want to spend more time with you. नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ में ज्यादा समय देना चाहता You हूँ will be तुझे। in the cup of blessings. तो आशीषों के प्याला में तुम रहोगे। Which cup you want to stay back? कौन सा प्याला में तुम रहना चाहते हो? This cup or this cup? ये अधर्म का प्याला में या आशीष के प्याला में? Because this is going to be judged this year. क्योंकि आने ये साल में प्रभु इसके ऊपर अपना न्याय प्रकट करने There वाले is going हैं। to be a severe judgment on this earth this year. ये आने वाले साल, ये जो साल है इसमें प्रभु बहुत बड़े तरीके से इस पूरे संसार का न्याय करने वाले The हैं। blood is crying. वो लहू अभी रो रहा है, Blood is crying. वो खून अभी रो रहा है, Blood is crying. लहू रो रहा है, Blood is crying. लहू रो रहा है, Blood is crying. लहू रो रहा In है। 2015, lot of innocent blood was shed. 2015 साल में बहुत सारे इनोसेंट लोगों का लहू बहाया गया, But this day, लेकिन आज the Lord spoke to me प्रभु ने मुझसे कहा and said, और बोला, ask the church कलीसिया से कहो, whether you want मांगो, to be in the cup of iniquity or the cup of blessings. कलीसिया से पूछो क्या तुम अधर्म के प्याला में रहना चाहते हो कि आशीषों के प्याला में चलना चाहते हो? Hallelujah. हालेलुया। Which cup you want to stay back? तुम कौन से प्याला में वापस रहना चाहते Very हो? quickly, I want to give you straight 8 advice for your spiritual growing in the cup of blessings. तो जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए एक आशीष कुछ सलाह देना चाहता हूँ ताकि तुम उस आशीषों के प्याला में चलो। Last night we saw, thank you, पिछले रात को हमने देखा कि God शेल्डन कि wants us to carry His presence, प्रभु चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति को लेकर चले, year of His presence and year of His will. जो उसकी ये साल होगा उसकी उपस्थिति का और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का। This year I want to give you 8 advice from the Bible. बाइबल में से मैं तुम्हें 8 सलाह ये साल के लिए देना चाहता हूँ। Very quickly, advice number 1, जल्दी से पहला सलाह, 1 Timothy 1:3. पहला तिमोथेयुस 1:3
You can write down if you want. अगर आप चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। 1 Timothy 1:3. पहला तीमुथियुस 1:3। How you have to be in this perilous time. इस बुरे समय में तुम्हें किस रीति से जीना है। Okay, the Bible says, as I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus that you may charge 1:3, right? 1 Timothy 1:3, Yeah. right? Went to Macedonia, and thou mightest charge some that they teach no other doctrine. जैसे मैंने मकेदोनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे। Number 4. Neither give heed to the fables and endless genealogies which minister questions rather than godly edifying which is in faith. So do. और उन ऐसी कहानियां और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपटा रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। So you need to be strong in the word of God. तो तुम्हें प्रभु के वचन में बहुत सामर्थ्य होना जरूरी है। You should not be deceived. तुम्हें भरमाना नहीं है, धोखा नहीं खाना है। This is what the first advice from the Lord. तो ये पहला सलाह है प्रभु से। Hallelujah. The first advice, do not heed to the wrong things. तो पहला सलाह क्या है? गलत चीजों को के ऊपर ध्यान मत दो। But have charity out of a pure heart. लेकिन अपने कपटा रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न करो। Be strong in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु में बहुत बलवंत होते जाओ। And have the grace of the Lord upon your life. और प्रभु का अनुग्रह रखो अपने जीवन पर। Be strong. That's all I want to say. The first advice. पहला सलाह क्या है कि शक्तिमान बनो प्रभु में। The second advice for this year. दूसरा सलाह ये साल के लिए। 2 Timothy chapter 2 verse 3. दूसरा तीमुथियुस 1:3 2:3 sorry. Therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। In the grace of God. प्रभु के अनुग्रह में। Amen. The second advice for you is be a good soldier of Jesus Christ this year. दूसरी सलाह क्या है? ये साल में यीशु मसीह के लिए एक अच्छे योद्धा बनो। Endure hardship. यानी सारे दुखों को उठाओ, As a सहन good करो। soldier of Jesus Christ. यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के नाते। Because in this perilous world, क्योंकि इस बुरे दुनिया में, you know, there are so many dark lies are going to appear before you. तुम्हारे सामने बहुत सारे से काले झूठ प्रकट होंगे। But you need to be strong to fight like a soldier of Jesus Christ. लेकिन तुम्हें बहुत ही सामर्थ्य बलवंत होना जरूरी है। एक अच्छे सैनिक होने के नाते तुम्हें लड़ाई करनी है। You need to fight a good fight. यानी तुम्हें एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। Number 3, no attachment to the worldly things. तीसरा मुद्दा, संसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं। Turn to somebody and say no attachment to the worldly things. किसी से मुड़कर कहो कि संसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं। 1 Timothy 6:8-10. पहला तीमुथियुस 6 और 8 से लेके 10 तक। 1 Timothy chapter 6 पहला तीमुथियुस 6 अध्याय verse 8. 8वां वचन से लेके 10वां वचन पढ़ेंगे। And having good food and raiment, let us be there with content. और यदि हमारे पास खाने और पहने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in distraction and prediction. पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। For the love of money is a root of all kinds of evil, which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through the
with many sorrows. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया Now, है। church, I want to tell you, no attachment to the world. This will not happen to you. अभी मैं कलीसिया तुमसे कहना चाहता हूँ कि संसारिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। Be strong, सामर्थी रहो, endure hardship, सब दुखों को सह लो, उठा लो। no attachment to the worldly things. संसारिक चीज़ों के साथ में कोई लगाम मत रखो। Number 4, remember Jesus Christ resurrected from the dead this year. चौथा मुद्दा, इस बात को हमेशा याद रखो कि यीशु मसीह मरों से जी उठा। 2 Timothy 2:8. दूसरा तिमोथेयुस दूसरा अध्याय और 8वां वचन। Beautiful. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। Hallelujah. You know, if anybody says Jesus is not raised from the dead, he is a devil. अगर यदि कहता है कि यीशु मसीह मरों में से जी नहीं उठा है, तो वो व्यक्ति शैतान है। Hallelujah. ISIS doesn't believe that Jesus died on the cross. ये ISIS के लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह क्रूस पर Muslims मरा। doesn't believe that Jesus died on the cross. मुसलमान लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। But you need to preach on the resurrection of Jesus Christ. लेकिन उन्हें तुम्हें प्रचार करने की जरूरत है यीशु मसीह के You पुनरुत्थान के need to बारे में। remember to preach the Jesus crucifixion. और यीशु के क्रूसित होने के बारे में तुम्हें प्रचार करना जरूरी है। Advice number 5. 5वां सलाह, 2 Timothy 2:15. दूसरा तिमोथेयुस 2:15। Got it? Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। Study the word of God प्रभु के वचन को अच्छी तरह से सीखो and spend time with God's word. और प्रभु के वचन के साथ में ज्यादा समय बिताओ। Advice number 5. 5वीं सलाह, Study the word of God. प्रभु के वचन को सीखो Spend time with the word of और God, प्रभु के वचन के साथ में समय बिताओ, and you will know the truth of God's word. तब तुम प्रभु के सत्य के वचन को जानोगे। This is advice number 5 for this year. यही 5वां सलाह है इस साल के लिए। Advice number 6. छठा सलाह, You need to avoid 3 things this year. ये साल को 3 चीजों से तुम्हें जो है अपने आप को सावधान यानी बचा कर रखना Turn to है। somebody and say lively, avoid 3 things. I prophesy over you. Tell them, I prophesy over you. मैं मेरी भविष्यवाणी तुम पर कर रहा हूँ। You should avoid 3 things this तुम्हें year. ये साल में ये 3 चीजों से बचकर रहना है। Be serious. गंभीर हो। Turn to somebody. I am prophesying over you. किसी से कहो कि मैं तुम पर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। God is telling me. प्रभु मुझे कह रहा है। Turn to somebody and say, God is telling me. प्रभु मुझे ऐसे कह रहा है। You need to avoid 3 things this year. ये साल में तुम्हें 3 चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है। What is that? 3 things. वो 3 चीजें क्या है? 2 Timothy 2:23. दूसरा तिमोथी 2:23। Advice number 1. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि तू उनसे झगड़े होते हैं। Hallelujah. God is telling you. Turn to somebody and say, God is telling you. प्रभु ऐसे तुमसे कह रहा है। But foolish and unlearned questions avoid. मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, Knowing that they do gender strifes. क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apart to teach patience. और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा से निपुण और सहनशील हैं वो। Hallelujah. You don't be foolish.
मूर्ख मत बनो, fight with the people for no reason. किसी भी कारण के बिना लोगों से झगड़ा करते मत I'm रहो। advising you this morning ये सबक को मैं तुम्हें सलाह दे to रहा have a हूँ, successful year. तो फिर तुम्हारा साल जो है वो बहुत ही सफलदायक होगा। 22, brother. Come back. 22वां वचन में वापस जाएंगे। Flee also these 3 things you need to avoid now. अभी ये 3 चीजों को तुम्हें अलग चीजों से सावधान रहना है। Youthful lust, number 1. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पहला मुद्दा। भाग. Tell to somebody. भाग. भाग। अरे जोर से बोलो यार. किसी से कहो भाग। ऐसा. Hey, भाग. All turn to that youth and say भाग. कल सब लोग वो जवान लोगों को मुड़कर कहो, ए भाग। ये बोलता है मैं जवान हूँ, राइट? जय जवान जय किसान, राइट? हालेलुया. What it says? वचन क्या कहता है? हिंदी में क्या बोलता है? जवानी की अभिलाषा उनसे, कौन सा ईयर? हाँ, हालेलुया. वो बोलने का नहीं. आमीन. जवानी की अभिलाषा से, turn to somebody and say जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ऐसा एक दूसरे से कहे। हालेलुया. Amen. But tell them, but follow. Louder, follow. This year, righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart. With whom you have to spend, not with the foolish people who run behind the youthful lust. और किसके साथ में तुम्हें अपना समय बिताना है? उन लोगों के साथ में नहीं जो जवानी की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, वो मूर्ख लोगों के साथ में है। Hello, is there any मूर्ख लोग here? यहाँ कोई मूर्ख लोग हैं? Only 2 are not there. Rest सिर्फ 2 all- लोग नहीं है मूर्ख, बाकी के सब मूर्ख हैं। I'm asking, is there any foolish here? यहाँ पे कोई मूर्ख आदमी है? That sounds good. अभी अच्छा लग रहा है But सुनने। you need to walk righteously, faith, charity, peace. One who has the Lord and the pure heart. और वो उनके साथ में तुम्हें उनका पीछा करना है जो धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चलना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1 Timothy 1:5. पहला तीमुथियुस 1:5। Now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Hallelujah. God is expecting the pure heart from everybody. तो प्रभु हर एक व्यक्ति से एक शुद्ध मन की अपेक्षा करता है। Now put next verse, brother, 6. 6ठा वचन डालो भाई। From which some having severed have turned aside unto vain juggling. इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। Quarreling. बकवाद की ओर। You know, the second thing, you should run from quarreling. दूसरी बात क्या है कि तुम्हें ये बकवाद जो करते हैं उनसे दूर भागना है। Hallelujah. This year don't quarrel with anybody. यानी तुम्हें खुद को भी किसी से बकवाद नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। Hello. Are you here? क्या आप लोग हैं? Are you here? क्या आप लोग सुन रहे हैं? Are you here? Amen. Run away from the idle talk. यानी वो ऐसी बकवाद की बातों से दूर भाग जाओ। Amen. The Bible is saying 3 things you have to avoid. तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? 3 चीजों को तुम्हें जो है अपने आप को बचा कर रखना है। 3 चीजों से। Youthful lust, वो जवानी की अभिलाषाएं, foolishness, मूर्खता से, and quarreling. और एक लड़ाई झगड़ा। Amen.
Turn to somebody and say, no youthful lust this year. ये साल किसी से मुड़कर कहो, जवानी की अभिलाषा बिल्कुल नहीं ये साल में। कहो तुम्हारे पड़ोसी से, जवानी की अभिलाषा बिल्कुल नहीं इस साल में। बोलो बोलो, जोर से बोलो। जोर से बोलो। When you say that, you need to delete all the WhatsApp figures that you have put inside that. तो जब तुम ऐसे बोलते हो, तुम्हारे व्हाट्सएप में जितने भी तुम्हें चित्र डाले उसे निकालना जरूरी And you है। have to remove all the idle talk, the Bible says. और बाइबल कहता है कि तुम्हारे जितने भी बकवाद बातें हैं उन सारी बातों को हटा दो। King James Version says, vain juggling means idle talk. किंग जेम्स वर्जन कहता है वेन जैगलिंग यानी बकवाद बातें। Wasting the time on the WhatsApp व्हाट्सएप में समय बिता रहे हैं, for waste no कर रहे हैं, reason. बिना कोई That कारण। much time you need to spend in the presence of the Holy Spirit. उतना समय तुम्हें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बिताना है। The seventh advice, सातवां सलाह, grow under right leadership. Don't forget them. सही अगुवाओं के नीचे बढ़ते जाओ, उन्हें भूलो मत। 1 Timothy 7 brother, 7 same, verse 7. पहला तिमोथी 7। 7 and 8. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. 8. But we know that the law is good if a man use it lawfully. और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली है। Hallelujah. You need to be very careful when you read the word of God this year. जब तुम व्यवस्था को पढ़ते हो, प्रभु के वचन को, ये साल में तो बड़ी सावधान होना जरूरी है। Now turn to 2 Timothy chapter 1 दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय में चलेंगे and verse 6, और 7 and 8. और 6, 7 और 8वां वचन पढ़ेंगे। Read with me. 5 के साथ में पढ़ो। Therefore, I put thee in remembrance. I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, that thou stir up the gift of God which is in thee, by the putting on of my hands. By the putting on of my hands. एक मिनट, put 6 brother, 6 only. इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है चमका दे। 7 हिंदी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 8 इसीलिए हमारी प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। What you learn, number 8, you need to practice. यानी जो ये 8वें वचन में जो तुमने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। Let God's will continue day to day basis in your life. प्रभु की इच्छा को तुम्हारे जीवन में हर दिन पूरा होता जाने दो। The 8 advice for your life this day. ये साल के लिए ये 8 तुम्हारे लिए सलाह। Till Christ comes in glory. जब तक यीशु मसीह महिमा में न आए, Be strong सब बलवंत रहो in the grace of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ में। Endure hardship as a good soldier. और एक अच्छे योद्धा के रूप में सब दुख उठा लो। Don't keep any worldly attachment or worldly friends. कोई भी संसारिक लोगों के साथ में दोस्ती मत रखो या उनके साथ में कोई लगाव मत रखो। Remember Jesus Christ resurrected from the dead. इस बात को हमेशा याद रखो, यीशु मसीह मरों में से जी उठा तीसरे दिन। Study the word and spend time with the word of God. प्रभु के वचन को सीखो,
और उसके वचन में ज़्यादा समय बिताओ। Avoid three things: 3 चीज़ों को तुम जो है अपने आप को संभाल कर रखो। youthful lust, जवानी की अभिलाषाएं, foolishness, मूर्खता से and quarreling. और लड़ाई झगड़े से। And number 7, grow under right leadership. और 7वां मुद्दा, आप सही अगुवाओं के नीचे बढ़ते जाओ। Yesterday I was mentioning one scripture. कल मैंने तुम्हें एक वचन कहा था, Iron sharpens iron. जैसे लोहे को चमकाता है, In the same way, a spiritual person, if you stay with a spiritual person, you will become spiritual. या उसी रीति से अगर एक आत्मिक व्यक्ति दूसरे आत्मिक व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो वो आत्मिक रहेगा। Hallelujah. If you're down, that another spiritual person will lift you up. अगर तुम दुखी हो तो दूसरा आत्मिक व्यक्ति जो है तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Some people are like that tortoise. कुछ लोग हैं जो मछुए के समान हैं। कछुआ। सॉरी, कछुए। मछुए, वो क्या है? मछुए। That is Konkani language. मछुए। कछुए के समान है। कछुए के समान है। Hallelujah. You know, if you touch that kachua, puts her head inside and locked herself and do anything. I don't care. अगर उस कछुए को तुम छुओगे ना तो कछुआ क्या करता है, वो तुरंत अपना सिर जो है वो अंदर डाल देता है और तुम भले कुछ भी करो, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उसको लात मारो, उसके ऊपर खड़ा हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको लात मारेंगे, उसके ऊपर खड़े रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Hallelujah. If you are with कछुआ, you will learn कछुआ बुद्धिस। अगर तुम कछुए के साथ में रहोगे तो कछुए की बुद्धि तुम्हारे साथ रहेगी। If you under the right leadership, under the anointing, you will learn anointing. अगर तुम सही अगुवा के नीचे, सही अभिषेक के नीचे, तो सही अभिषेक ही तुम्हें मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। You don't need कछुआ anointing. तो कछुए का अभिषेक नहीं चाहिए, You need right anointing. तुम्हें सही अभिषेक चाहिए। Turn to somebody and say, if I see you like kachua, you mark my words. I will break and I will eat. किसी से कहो, तुम्हारे पड़ोसी से, अगर मैं देखूंगा कि तुम कछुए के समान हो तो तुम्हारा जो ऊपर का जो कवच उसे तोड़ दूंगा। Amen. और खा जाऊंगा तुझे। You know what is the kachua's buddhi? देखो कछुए की बुद्धि जानते हो कैसे? Don't mingle with anybody. I, me, myself. किसी से जाकर घुल मिल मत जाओ, मैं खुद, मैं और अपना स्वयं। In our village there is a हमारे गांव में एक कहावत है। there is a, you know, if you touch, that will close. What is that called? फ्लावर। कछुआ जैसा बात मत करो। One person. Touch me not. हाँ? मराठी में? राजा गुरु। I'm confused. Anyway, touch me not. वो एक जो झाड़ है जिसे कहते हैं टच मी नॉट, यानी उसके छुएंगे तो तुरंत ही वो I, me, myself. बंद हो Don't जाता touch है। me. मैं और मेरा स्वयं, मुझे बिल्कुल नहीं छूना। That's what morning it blooms, evening it dies. इसीलिए सुबह को जो है वो खिलता है और रात को मुरझा जाता है। Hallelujah. That's what everybody kicks that one. इसलिए सब लोग जाते हैं उसको लात मारते And the हैं। anointing will play with the touch me not. और वो अभिषेक वो मुझे मत छू ऐसे लोगों के साथ खेलता है। Hallelujah. They purposely go and touch. How are you? और जानबूझ के उसे छूते हैं तो कैसा है, And that will go inside. और फिर वो अंदर चला जाता है। Again they are waiting. फिर से वो रुकते हैं, Again that will come. फिर से वो खिल जाता How are है। you? तू कैसा है? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो अंदर चला जाता है। You are not touch me not believer. You are touch me believer. और तुम ऐसे विश्वासी हो कि मुझे मत छू ले लेकिन मुझे छू ले, ऐसे विश्वासी हो तुम। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा, touched me. किसने मुझे छू लिया? Power went out of me. अरे मेरे अंदर से तो सामर्थ निकल गया है। Hallelujah. I am not touch me not believer. अरे मैं मुझे मत छू ऐसा विश्वासी नहीं। I am touch me believer. अरे मुझे छू, मैं ऐसा विश्वासी If हूँ। you touch me, यदि तू मुझे छुएगा, you are touching the presence of the living God. तू जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को छू रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
This touch me not believer will not save any other person in the world. Will not save any person to the Lord. ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसा विश्वासी जो कहता मुझे छू मत, वो कोई भी विश्वासी को किसी को भी प्रभु में लाएगा नहीं, दुनिया में किसी को नहीं लाएगा प्रभु में, क्योंकि मैं मेरा खुद का स्वयं और मैं अपने आप. God also says, I me myself, I don't know who you are. तो प्रभु भी कहेगा तो मैं मेरे अपने आप में और मैं स्वयं में, मैं नहीं जानता तू कौन है. This touch me not believers. ये ऐसे विश्वासी जो मुझे मत छुओ. He said, hey, Jesus has come. अरे यीशु आ गए हैं. तो क्या हुआ, मेरे को कुछ फर्क नहीं है. वो कहेंगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से अपने अंदर चले जाते हैं. उपवास प्रार्थना चालू है. From 17 January 2016 to 7 days. अरे जनवरी की 17 तारीख से लेके जो 7 दिन के लिए उपवास प्रार्थना है कलीसिया में. You don't tell me all those things, I can fast, तुम मुझे ये सब बातें मत बताओ, मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होता है. I have kidney problem, I have organ problem, I have disorder, I have mental problem, I have physical problem, health problem, no problem. तो मेरे जो है मैं उपवास प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मेरे गुर्दे में समस्या है, मुझे शरीर में से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या वो समस्या है, मैं बिल्कुल उपवास नहीं कर सकता हूँ. Hallelujah. If you want gurda problem to be solved, you need to fast. अगर तुम चाहते कि तुम्हारा गुर्दा का समस्या हल हो जाए तो उपवास करो. Jesus fasted, I will fast. यीशु ने यदि उपवास किया तो मैं भी उपवास करूंगा. Jesus taken water baptism, I will take water baptism. यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया था तो मैं भी पानी का बपतिस्मा लूंगा. Filled with the Holy Spirit, I am filled with the Holy Spirit. यदि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे तो मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा. Jesus broke the bread, I will break the bread. यीशु ने रोटी तोड़ा तो मैं भी रोटी तोड़ूंगा. Jesus took the cup, I will take the cup. यीशु मसीह प्याला में से पिया तो मैं भी प्याला पीऊंगा. Jesus healed the sick, I will heal the sick. यीशु मसीह ने रोगों को चंगाई दी तो मुझे भी चंगाई दी. Resurrected from the dead, one day I will resurrected from this earth to the glory. और यीशु मसीह मरों में से जी उठा तो इस धरती से भी एक दिन मैं उठाए जाऊंगा उसकी महिमा के साथ में. Hallelujah. 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 Turn to somebody and say, touch me. कि तुम्हारे पड़ोसी से कहो या किसी से कहो मुझे छू लो. And you sing this song. Chule mujhe, chule mujhe. Hallelujah. You are not allowing Jesus to touch you. तुम यीशु को छूने ही नहीं दे रहे हो अपने आप को. Chule mujhe, and Jesus want to touch you. Go inside. तुम कहते हो छू ले मुझे और यीशु तुम्हें छूना चाहता है, तुम तुरंत ही उस कवच के अंदर चले जाते हो. What is the use? छिप जाते हो. Hallelujah. क्या फायदा है उसका? This year, ये साल, what you say, you need to walk. जैसे तुम बोलोगे, तुम्हारे मुंह से अंगीकार करोगे, उसके अनुसार ही तुम्हें चलना भी जरूरी है. Touch me, Christian. मुझे छू लो, ऐसा मसीह हूँ मैं. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या रेडी हैं आप? You need to get out of the house and see the wonders of God. अपने घरों से तुम्हें फिर बाहर निकलना है और देखना है प्रभु के अद्भुत कार्यों को. I finished my 8 advices for you. तुम्हारे लिए 8 सलाह समाप्त हो गए जो मैं To तेरे start your new beginning year. अभी तुम्हारे साल का नई शुरुआत तुम करो. I want to tell you. कलीसिया तुमसे कहना चाहता हूँ. Sin of iniquity is full. तो अधर्म का पाप तो भर गया है. The cup of blessing is full. आशीषों का प्याला भी भर गया है. God is going to shake the earth. प्रभु इस धरती को हिलाने वाले हैं. God is going to shake the heavens. प्रभु इस आकाश को हिलाने वाले हैं. And later glory will be powerful than the former glory. जो आने वाली महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी. We will not take any glory for ourselves. हम कोई भी महिमा अपने लिए नहीं लेंगे. We will tell Lord, you take all the glory. हम कहेंगे प्रभु सारी महिमा तू ले ले. How that single leper came back to Jesus who was healed and said, Jesus, thank you, and he worshipped him and said, Lord, thank you for healing me. जैसा वो एक कोढ़ी वापस आई यीशु के पास और कहा यीशु धन्यवाद तूने मुझे चंगाई दी, वैसे हम भी यीशु के पास आएंगे और धन्यवाद देंगे. As the bread and the cup is there. जैसे रोटी यहाँ पर है और प्याला भी यहाँ पर है. Before I give the revelation and we break the cup and the bread and biryani. और जैसे हम अभी ये रोटी तोड़ने से पहले और प्याला में से पीने से पहले और बिरयानी खाने से पहले I want to tell you 3 powerful things what God told me how to get out of 2015 and get inside 2016. Of course we are already in 2016. तो फिर प्रभु ने मुझे बातें बताई कि 2015 से कैसे निकलकर 2016 में कैसे प्रवेश करना है. Since some people have missed, I want to repeat this one for 5 minutes. कुछ लोगों ने कल चुका है इसलिए मैं 5 मिनट के लिए फिर से दोहराना चाहूँगा. पहला, Moses saw the burning bush.
मूसा ने वो जलती हुई झाड़ी देखी He got an encounter. और वो प्रभु से उसके आमना सामना हुआ He went to the Israelites और वो इज़राइल के पास गया who are under the bondage of Egypt. जो मिस्री देशों के हाथों में बंधन में थे। He did 10 signs and wonders, वहां पे उसने 10 चिन्ह और चमत्कार but किए, nothing worked out. लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हुआ। But when he claimed the blood of the lamb लेकिन जब उसने उस मेमने को लहू को on लगाया every doorpost, हर एक दरवाजे के दिवट पर, listen to this revelation. अभी Every ध्यान से इस doorpost. प्रकटीकरण को हर एक दरवाजे के चौखट पर, They were in 2015. वो 2015 में थे। The moment the blood was applied on the doorpost, जिस समय वो दरवाजे के ऊपर चौखट के ऊपर उन्होंने वो उस लहू को लगाया, they easily came out of bondage. वो आसानी से उस बंधन से बाहर निकल गए। Now, I want to tell you, अभी तुम्हें कहना चाहता हूँ, under the blood covering of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के नीचे we are going to move in हम 2016. 2016 में प्रवेश करेंगे। I told you another thing. और एक बात मैं तुम्हें बताया, Many people had the blood covering of God. बहुत सारे लोग थे जो यीशु के लहू के अंदर थे, They were under the blood of the Lamb, तो मेमने के लहू के नीचे थे, but enemy didn't touch them. लेकिन वो शत्रु ने उनको छुआ भी But नहीं, because they murmured against Moses and God, लेकिन मूसा के विरुद्ध और प्रभु के विरुद्ध क्योंकि वो कुड़कुड़ाए, died. वो मर गए, They died. वो मर गए। So when you are under the blood, जब तुम लहू के नीचे हो, don't murmur. कुड़कुड़ाओ मत, Don't murmur. बिल्कुल कुड़कुड़ाना It is the नहीं है। blood that is going to take through life's journey और eternally. वो लहू है जो तुम्हारे जीवन के सफर में तुम्हें अनंत तक तुम्हें ले Now जाएगा। we are entering this 2016, the first day of the January. From this day, our journey begins under the blood of Jesus Christ. अभी 2016 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जनवरी का पहला तारीख है। हम चलेंगे इस साल में पहले यीशु के लहू के साथ ही चलेंगे। If you have the blood, अगर तुम्हारे पास वो लहू है, you will be victorious in this 2016. 2016 साल में तुम जयवंत That's what every रहोगे। moment when you get up in the morning, you cover yourself by the blood of Jesus Christ. इसलिए सुबह को जैसे तुम उठते हो, रोज सुबह को उठ के पहले अपने ऊपर यीशु का लहू लगाओ, Because no devil can stand before the blood. क्योंकि कोई शैतान उस लहू के सामने खड़ा No नहीं रह devil पाएगा। can rob your blessings when you are under the blood. कोई भी शैतान तुम्हारे आशीषों को चुरा नहीं सकता जब लहू तुम पर लगा है। Number 2, दूसरी बात, as Moses' body was buried by God, जैसे मूसा का जो शव था वो प्रभु ने स्वयं परमेश्वर ने उसे गाड़ दिया, but no trace of body of Moses or tomb of Moses was found. लेकिन यीशु का कब्र, यीशु का नहीं, Moses सॉरी का. मूसा का कब्र पाया ही नहीं गया था, ना उसका चिन्ह किधर है वो शरीर का वो मिला नहीं। Hallelujah. Now in the same way, उसी रीति से how the Moses tomb was not traced out, जैसे मूसा का कब्र मिला ही नहीं, what has happened in your past life will never be traced out. तुम्हारे बीते हुए जीवन में जो भी बातें घटी हुई उसका एक भी कण दिखाई नहीं देगा, Because your 2015 will never be traced out. क्योंकि तुम्हारा 2015 जो साल है वो दिखाई ही नहीं आएगा। This year is the year of fulfillment of all the prayers. ये जो साल है तुम्हारी सारे प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने का This साल is the है। year of fulfillment. ये साल है पूरा होने का साल It's the है। year of prayer answering here. ये साल है तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करने Long, का। long time you have been praying for only one thing, but this year you're not going to pray, you're going to receive it. और बहुत दिनों से तुम एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये साल में तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Number 3, तीसरी बात, we are going to go through the presence of God. हम प्रभु की उपस्थिति के साथ I चलेंगे। told yesterday, कल मैंने तुम्हें बताया था Joshua योशु is the next successor of Moses. मूसा के बाद वही अगला सेवक बना, And the Bible says, और वचन कहता है now Joshua came to Jordan. अभी यहोशू यर्दन के पास आता है, And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता है there was no way to go out from this place to that place. ये जगह से लेके दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं Jordan था, was the hindrance. क्योंकि यर्दन अड़चन थी, The force water was flowing. क्योंकि वो बहुत ही बड़ी नदी वहां पर बह रही In थी। 2015 you had the force water rushing upon your life, but you couldn't reach the destiny where you have to reach. 2015 साल में तुम्हारे जीवन में एक बाढ़ के समान पानी जैसा बह रहा है, वैसे तुम्हारे जीवन में हुआ, लेकिन तुम नहीं जानते थे तुम कैसे दूसरे
स्थान पर The पहुंचोगे, history says the Jordan river was flowing such a forceful, nobody could cross this place to that place. इतिहास ऐसा कहता है कि वो यर्दन का पानी जो इतना तेज गति से बह रहा था और उस पानी के से पार करना जाना संभव ही नहीं है। Hallelujah. He never created one boat and passed on. उसने कोई नाव बना के उस नाव पर चढ़कर वो नहीं गया, But God gave him power. लेकिन प्रभु ने उसे सामर्थ्य God दिया, gave him anointing. प्रभु ने उसे अभिषेक God दिया, gave him wisdom. प्रभु ने उसे बुद्धि दी, God filled him with the Holy Spirit. प्रभु ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। And the Bible says, और पवित्र शास्त्र कहता as है, Brother Anil was mentioning about tabernacle. जैसे भाई अनिल तंबू के बारे में मैं बता रहा था, तंबू नहीं, संदूक. संदूक के बारे में बता रहा था, Hallelujah. And the tabernacle. और वो संदूक Hallelujah. God's presence. प्रभु की उपस्थिति, And when the priest took the God's presence, और जब वो याजक लोग प्रभु की उपस्थिति को it's लेकर not- चलने लगे, you have to remember this. ये बात तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है। 2016, not by your strength, not by your power, but by the power of the Holy Spirit. 2016 साल में अपने ही ताकत से, अपने बल से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ My करोगे। strength will not take me to my destiny. मेरा ताकत मुझे अपने दिशा में नहीं ले My जाएगा, power will not take you to my destiny. मेरा सामत मुझे अपनी दिशा में नहीं ले But जाएगा, it's the presence of God make me to reach the destiny. लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति है जो मुझे Now- मेरी दिशा में Now पहुंचाएगा। listen to me this revelation. अभी सुनो इस प्रकटीकरण Now को। when they lifted that sanduka, और जब उन्होंने उस संदूक को उठाया, when they lifted that God's presence, जब प्रभु की उपस्थिति को उन्होंने उठाया, Joshua said, योशुआ ने move कहा, forward. आगे बढ़ो, And nobody doubt. कोई भी शंका नहीं It's करेगा। 2016 when I say move forward, don't doubt. ये 2016 साल के लिए जब मैं कहता आगे बढ़ो, तो बिल्कुल उस कोई बात का You are संकोच नहीं filled with the करो। Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए You have हो, the power of God inside you. प्रभु का सामर्थ तुम्हारे अंदर You have the है, promises of God upon your life. प्रभु के वादे तुम्हारे जीवन के You ऊपर have है, the prophecies over your life. तुम्हारे जीवन के ऊपर भविष्यवाणियां Now भी God है। says, प्रभु कहते in हैं 2016, 2016 में, this 2016, ये 2016 move में forward. आगे Move बढ़ो, forward. आगे बढ़ते जाओ, Move forward. आगे बढ़ते जाओ। What did the priest do? तो वो याजक लोगों ने They क्या took किया? the presence of God. उन्होंने प्रभु की उपस्थिति They ली, put their leg in the water. उन्होंने अपना पाँव उस पानी में डाला। The moment they put the leg in the water, जैसे उन्होंने अपना पाँव उस पानी में डाला, the flowing water stopped. वो नदी जो बह रहा था तेज गति से वहीं पर रुक गया। God's presence will stop all the unwanted flowing upon your life. प्रभु की उपस्थिति वो सारी चीजें जो तेज गति से तुम्हारे जीवन में बह रही है, जो इसकी जरूरत नहीं है, प्रभु उन सारी चीजों को रोक देगा। Hallelujah. हालेलुया। Second step, और दूसरा कदम उठाया, the both sides stood like a wall. दोनों तरफ से जो पानी बह रहा था वो दीवार के समान खड़ा हो It गया। was a clear way on the third step. और तीसरे कदम में सीधा मार्ग हो First गया। step he stopped. पहले कदम में हमने देखा, Second step he made it to rise up like a wall. दूसरे कदम में उसने उसे दीवार के रूप में उस पानी को And the खड़ा कर third दिया, step they started to walk, move forward. और तीसरे कदम के बाद वो आगे आगे ज्यादा चलने लगे। 2016 is moving forward, marching forward. 2016 साल में वो आगे बढ़ रहा है, It is a moving forward year. वो आगे बढ़ने का साल है, Because God's presence is going to flow. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति बहने वाली है। God's presence is going to come upon everybody. प्रभु की उपस्थिति हर एक व्यक्ति के ऊपर आने वाली Holy है। Spirit is going to move. पवित्र आत्मा मंडराने वाले हैं। Can somebody say hallelujah? कोई तो हालेलुया कहे। Now this year, अभी ये साल through में the blood, लहू के द्वारा, through the blood, उस लहू के द्वारा, through the presence, वो उसकी उपस्थिति के साथ without any trace of our lives, हमारे जीवन का कोई पिछला कण नहीं, and we are going to move forward in the 2016. हम 2016 साल में आगे बढ़ते जाएंगे। The cup is ready. अभी ये प्याला तैयार है, Oh, the bread is ready. रोटी भी तैयार है। We are going to move in this year with the blood of Jesus Christ. तो इस साल में हम यीशु के लहू के साथ जाएंगे। Put 1 John 1:7, brother. As the Spirit of the Lord leads, I'm going to put you. पहला यूहन्ना 1:7 डाले भाई, जैसे पवित्र आत्मा Hallelujah. कहेगा वैसे मैं बोलता जाऊंगा अभी। Oh, Rabba Sikiribi and Rabala Siana. But if we walk in light, as Jesus is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son,
cleanses us from all sin, no trace. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा भी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Your iniquity cup is gone. तो हमारा सारा अधर्म निकल जाता है। Your iniquity cup is gone. तुम्हारा अधर्म का प्याला जा चुका You are है। getting into the blessing cup. अभी तुम आशीषों के प्याले में प्रवेश Now कर रहे today, हो और आज 2016, 2016 we are साल going to में begin with the blood, presence and no trace. तो हम उस लहू के साथ में उसके उपस्थिति के साल में शुरुआत करेंगे इस साल को और पिछला कोई भी कण बाकी नहीं We रहेगा। are going to glow in the glory. हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all rise on our feet? आइए सब अपने पैरों पे खड़े होते हैं। Jesus took the bread that night. उस रात को यीशु मसीह ने उस रोटी को ली Jesus said, और यीशु ने I don't want any voice. मैं नहीं चाहता कि कोई भी बातें करे। I don't want any voice when we are breaking the bread. जब हम रोटी तोड़ रहे हैं मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहूंगा। Listen, when you listen, you can grow. जब तुम सुनोगे तभी तुम बढ़ I don't पाओगे। want any movements. कोई भी यहाँ वहाँ चलना मैं नहीं चाहूंगा कि It's चले। a very precious time. अभी ये बहुत ही बहुमूल्य समय है। Don't take blood of Jesus and the body of Christ so ordinary. यीशु के लहू को और यीशु के शरीर को इतने ही तुच्छ रीति से मत ले लो। Because many have come under the curse. बहुत लोग उसके कारण Many श्रापित हो came under गए। the sickness and dead and gone. The Bible बहुत says. लोग रोगी हो गए, मर के भी चले गए, ऐसा बाइबल कहता This है। is not a juice. ये कोई जूस नहीं This है, is not just a bread. ये केवल ऐसी ही रोटी नहीं You है। are making a reality about the blood and bread, remembering Jesus is the Lord of my life. यानी ये रोटी को तुम स्वाभाविक रूप से रह रहे हो, इस बात को याद रखो कि यीशु ही वो रोटी है। And this morning, और इस सुबह को first day of the year, साल का पहला दिन say है। with me, Lord Jesus, कहो मेरे साथ यीशु, thank you. My past is gone. My life is renewed. मेरा जीवन, I am a new creation. I am a new creation. I am under the blood of Jesus Christ. I am under the blood of Jesus Christ. Put in the mic. I am under the blood of Jesus Christ. 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 Lord Jesus, Lord Jesus, this year, my step is ordained by you. Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. Lord Jesus, fill me with your glory. Lord Jesus, fill me with your blood. Lord Jesus, fill me with your word. Lord Jesus, I want to experience the abundance blessing. Lord Jesus, you are the Lord of my life. This year, under the blood upon my life, I will walk through this year through the blood of Jesus. No demons, no attacks, no evil power will touch me nor my family, because we are going to walk through the blood of Jesus. Thank you, Jesus, for your blood upon my life, upon my children, upon my family, upon everything. This year, I believe blood of Jesus will carry me throughout my life journey. Jesus, I declare, I proclaim, you are the Lord of my everything. Thank you, Jesus. Today, as I break bread, I reunion with you, Lord. As I take the cup, I reunion with your covenant. In the name of Jesus, I will move forward. Move forward. Move forward. I have no second thought. I will fast and pray. I will pray. I will pray. I will pray. I will sing. I will worship. I will exalt God. Jesus, I fixed
my heart on you, on you, on you. Jesus, I am healed today. I am blessed today. No more sickness, no more diseases, no more evil spirits, no more youthful lust, no more foolish things, no more quarrelings, because I am washed by the blood of Jesus. I am filled with the Holy Ghost power in the name of Jesus. I am born again in this 2016. The first day of the year. The first day of the year. I am going to march. I am going to march. I am going to march in the presence of God. All the time. All the time. I keep my word with God. I keep my commitment with God. I am blessed today. I am honored today in the presence of God. All glory goes to Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, you're so wonderful. Your eye is on me. Thank you, Lord, for your mercy. Amen. Amen. I see His presence.